Good afternoon, everyone, and how are you? Today we are starting the subject SAPM. The full form of this is Security Analysis and Portfolio Management. This subject is for MCOM, BCom honors, and some other professional courses. So today we will discuss about the new chapter, the first chapter of SAPM, which is Investment Scenario. So investment, what is investment? We will read in it. What is speculation? What is gambling? We will read all the concepts of investment in it. So now we are starting with the introduction. Investment scenario, chapter number 1, introduction. The economic development of any country largely depends on the proportion of national income saved and invested. So, in previous classes, we have read that the economic development of any country depends upon the national income, the proportion of national income it earns, it saves, and also invests. So, what is national income? The total domestic product at net national product at factor cost. Net national product at factor cost of any country is known as the national income of the particular country, and it's in economics. And the second point is individuals have savings which are to be invested. Senior citizens want to invest their retirement funds. Institutions have occasions when they have to invest provident fund or pension fund. Money or idle funds. Corporates are often faced with the situation to park their short-term liquidity. So first point, the economic development of any country largely depends on the proportion of national income saved and invested. So, if you save the national income and you invest in the particular projects, then it will give the development, it will boost the development of any country. The second point is the individuals. Individuals means the household personalities. They have savings which they want to invest. For example, senior citizens want to invest in their retirement, and institutions like financial institutions who have some occasions, so they want to invest it in provident funds or pension funds. Now, money or idle funds. Idle funds means which are not still used. Now, corporates are often faced with the situation to park their short-term liquidity. To park their short-term liquidity means they have to keep the short-term liquidity, means liquid assets like a bank account, cash, and some marketable securities, stock and trade. These are known as the current assets. So they have to keep some kind of short-term liquidity if there is some kind of emergency in future. Now the third point is a careful and systematic investment analysis can provide to investors a sound framework for both the management of wealth and increasing the wealth in terms of return from investments. So now अगर हम देखें तो कोई केयरफुल और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस हम करें तो उसमें क्या होता है, इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस तरह से अपना मैनेजमेंट करते हैं, इस तरीक़ा का फ्रेमवर्क बनाते हैं जो दोनों ही मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ और इंक्रीजिंग द वेल्थ दोनों पे काम करे इन टर्म्स ऑफ रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स को आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा, दैट इज़ ROI. दैट मीन्स व्हेन यू इन्वेस्ट समथिंग and if you get the returns from that, that is known as the return on investment. So if there is any doubt, you can ask me in the comment section. Now the second point is need for investment. What is the need for investment? Before going to the need for investment, if you people want to copy it or want to note it, you can copy it. I am giving you 5 minutes, and or you can simply just take a screenshot. So after 5 minutes I'll come back.
So I think you may have taken the screenshots or you are still noting it down. So I am giving you a minute more. So now we go to the next topic, need for investment. See, investments are both important and useful in the context of present day conditions. In present day conditions now, as we don't have so much of liquidity, so investments gives us the boost to prepare ourselves for some drastic situations in future. We don't know when the situations will come when we need some amount of money, but if we have invested in something, we can just sell it out and get the money. The following factors have made investment increasingly important. First is longer life expectancy. What is the meaning of that? Longer life expectancy. We will read it now. Investments will help a working people to lead a good life after retirement. So if somebody have invested in something, then they can lead a good life after investment by using those investment tools as their income and generate some kind of money from it to live their livelihood. As it is regarded as the retired people are under the age of 60 and 65. We know that the retired people are under the age of 60 and 65. So savings from current earnings, they have some kind of current earnings, must be invested in such a way that the principal means principal amount, the amount which you have invested and income will be adequate for a greater number of retirement years. So they have to see that what they are investing is adequate for them for their retirement years. मतलब इतना अमाउंट तो होना चाहिए कि फ्यूचर में उनको उस अमाउंट के द्वारा रिटायरमेंट ईयर्स में काम आ जाए. रिटायरमेंट ईयर्स का मतलब है कि जब वो रिटायर हो चुके हैं उसके बाद उन्हें वो पैसा काम आए. इसमें एक और पॉइंट लिखा है हमने, बैलेंस इन्वेस्टमेंट्स आर नीडेड सो दैट द वर्किंग पॉपुलेशन प्रॉपर प्लानिंग फॉर लाइफ स्पैन कैन बी एंड्योर्ड. अगर बैलेंस इन्वेस्टमेंट्स की जाएंगी वर्किंग पॉपुलेशन के द्वारा तो एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू वो अपनी लाइफ को एंड्योर यानी कि अपनी लाइफ में उन पैसों का यूज़ करके जो भी वो करना चाहें वो कर सकते हैं. नाउ आई एम गिविंग यू 1 more minute टू कॉपी इट आउट और टू टेक सम स्क्रीनशॉट्स. So first point was longer life expectancy and the second point is increasing rate of taxation. See, taxation is the most important factor because of which an element of compulsion is imposed on individual savings. So देखो टैक्सेशन से क्या होता है, टैक्सेशन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे आपको पे करना पड़ता है. दिस इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसलिए लिखा हुआ है कंपल्शन इज़ इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स सेविंग्स. Taxation is the important factor because of which an element of compulsion, compulsory payment होता है ये, it's charge against profit, आपको पे करना ही पड़ेगा. on individual savings किस पे लगता है, एक पर्सन की सेविंग्स पे लगता है. there are various ways in our country in which investment can be done to get tax deductions. आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आपको टैक्स में डिडक्शंस मिल सकें. कुछ ऐसे लूप्स हैं हमारे पास, कुछ ऐसे एवेन्यूज़ यानी कि रास्ते हैं जिसके थ्रू हम इन्वेस्ट करके टैक्स डिडक्शंस ले सकते हैं. जैसे कि पहला है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, दैट इज़ NSC. दूसरा है डेवलपमेंट बॉन्ड्स. तीसरा है पोस्ट ऑफिस क्यूमुलेटिव डिपॉजिट स्कीम्स. चौथा है लाइफ इंश्योरेंस. पांचवा है यूनिट ट्रस्ट सर्टिफिकेट्स. और इस तरीके से और भी कुछ होते हैं, इसलिए हमने आगे एटसेट्रा लिख दिया है. तो क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है
आपको टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, बट उससे थोड़ा बहुत रियायत पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को रोटेट कर सकते हैं दूसरी जगह पे, जैसे कि NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लेकर, डेवलपमेंट बॉन्ड्स लेकर, पोस्ट ऑफिस क्यूमुलेटिव डिपॉजिट स्कीम्स लेकर, लाइफ इंश्योरेंस लेकर, या फिर यूनिट ट्रस्ट सर्टिफिकेट्स लेकर। जो सेकंड पॉइंट था इसको कॉपी कीजिए, पॉइंट नंबर B। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट, इंटरेस्ट रेट्स पर। द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इज़ अनदर फैक्टर फॉर अ साउंड इन्वेस्टमेंट। अगर इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा तो आप इन्वेस्टमेंट भी करोगे, तो इंटरेस्ट रेट अगर अच्छा मिल रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसका मतलब ये है इंटरेस्ट रेट्स में वेरी, इंटरेस्ट रेट्स अलग अलग भी हो सकते हैं। कैसे? पॉइंट A में लिखा है बिटवीन वन इन्वेस्टमेंट एंड अनदर। दो या दो से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स को आप कंपेयर करोगे तो उनके इंटरेस्ट रेट्स, रेट ऑफ रिटर्न अलग अलग हो सकते हैं। तो जिसमें आपको बेटर इंटरेस्ट मिलेगा, बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, उसी में ही आप इन्वेस्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट है बिटवीन रिस्की एंड सेफ इन्वेस्टमेंट्स। आपको ये भी देखना पड़ता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट्स रिस्की है, इसमें कोई रिस्क है, या ये सेफ़ है। इफ़ देयर इज़ एनी रिस्क इन्वॉल्व और नॉट, यू हैव टू एनालाइज दैट एज वेल। थर्ड पॉइंट कह रहा है ड्यू टू डिफरेंट बेनिफिट स्कीम्स ऑफर्ड बाय द इन्वेस्टमेंट। तो क्या फैक्टर्स होते हैं? पहला है आप दो इन्वेस्टमेंट्स में कंपेयर कर सकते हैं कि जिस पे रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा, जिसमें रिस्क कम होगा या जो सेफ़ होगा उसी में ही आप इन्वेस्ट करेंगे। तीसरा, बहुत अलग अलग डिफरेंट आपके पास बेनिफिट स्कीम्स मिलती हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। The investors decide whether they are getting an acceptable return commensurate with the risks that are taken। जो इन्वेस्टर है वो ये डिसाइड करते हैं कि आपको आपका चाहा हुआ एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है या नहीं। जितना आपने पैसा लगाया है, जितना आपने रिस्क उठाया है, उसके बेसिस पे आपको रिटर्न मिल रहा है या नहीं। As stability of interest is as important as receiving a high rate of interest। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की स्टेबिलिटी, स्टेबल होना भी बहुत ज़रूरी है, साथ में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलना ज़रूरी है। तो एक इन्वेस्टर क्या चाहेगा? जहां वो इन्वेस्ट कर रहा है उसका इन्वेस्टमेंट स्टेबल हो, उसे स्टेबल रेट ऑफ रिटर्न से हमेशा इंटरेस्ट मिले, और वो कंपेयर करके ये देखेगा कि किस में उसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, वो उसी में ही इन्वेस्ट करेगा। पॉइंट नंबर D है इन्फ्लेशन, लेकिन उसके पहले आप पॉइंट नंबर C को या तो कॉपी कर लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पॉइंट नंबर D है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जब जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है। जनरल प्राइस लेवल बढ़ने का मतलब है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो उसमें इजाफा हो जाता है, उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेशन इंक्रीजेस प्राइसेस, राइट, वी नो दैट, एंड रिड्यूसेस द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कैसे? अगर आपके इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, आपका प्राइसेस बढ़ जाएगा, तो रेट ऑफ रिटर्न कम मिलेगा, क्योंकि आपको सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर खर्चा करना पड़ेगा। Then whatever you have with you as savings, you will invest that, right? तो इन्फ्लेशन बढ़ने से भी आपकी सेविंग हिंडर होती है, आपकी सेविंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, और जैसे ही सेविंग्स में प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट रेट कम हो जाता है। An investor will invest in the best possible investment schemes which will increase his return on investment without escalating one's taxation burden। एक इन्वेस्टर यही चाहेगा कि वो ऐसे स्कीम्स में इन्वेस्ट करे जहाँ से उसको रेट ऑफ रिटर्न तो ज़्यादा मिले, लेकिन उसके टैक्सेस पर भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आई एम गिविंग यू 1 minute to copy this out, the point D,
or you can take the screenshot. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, वी विल कंटिन्यू. देखिए पॉइंट ई, दैट इज़ इनकम. देखिए इनकम जितनी ज़्यादा होगी इन्वेस्टमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा. द मोर वी अर्न द मोर वी डू इन्वेस्टमेंट, राइट. एज इनकम क्रिएट्स एवेन्यूज़, मतलब रास्ते निकाल देती है इनकम. क्रिएट्स एवेन्यूज़ फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड विलिंगनेस ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन टू सेव एंड इन्वेस्ट. इनकम बढ़ेगी तो आपको इच्छा भी होगी कि आप किसी जगह पे इन्वेस्ट करें और ज़्यादा सेव करें, राइट. सो इनकम is also a positive force towards investments. Now investment channels. Point F, investment channels. The growth and development of a country leading to greater economic activity has led to the introduction of vast array of investment outlets. देखिए जिस तरीके से एक कंट्री की ग्रोथ होती है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं, इकोनॉमिक लाइफ भी अच्छी होती है, तो वहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आउटलेट्स आपको मिलते हैं. सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल आर कॉर्पोरेट स्टॉक, जैसे कि बॉन्ड्स एंड शेयर्स, प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, यूनिट ट्रस्ट स्कीम्स एंड सो ऑन. तो जो इन्वेस्टर्स हैं, द इन्वेस्टर्स इन देयर चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट विल हैव टू ट्राई and achieve a proper mix between the high rate of return and stability of return to reap the benefits of both. तो इन्वेस्टर क्या सोचेगा, वो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करेगा कि उसे दोनों चीज़ें एक साथ मिलें, एक प्रॉपर हाई रेट ऑफ रिटर्न मिले विथ ऑल्सो द मिक्स ऑफ स्टेबिलिटी भी होना ज़रूरी है. टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ बोथ. रीप मतलब बेनिफिट्स प्रोवाइड करना. आप खेती बाड़ी में देखते हैं तो रीप द क्रॉप्स, यानी कि क्रॉप्स को निकालना. उसी तरीके से ही यहाँ पे प्रॉफिट्स को निकालना. प्रॉफिट्स या फिर सरप्लस भी कहा जा सकता है, जो उन्हें ज़्यादा मिले वो उसी में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं. कल हम कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. इफ़ यू पीपल हैव एनी डाउट यू कैन send the comments in the comment section. Can you tell me in the comment section and I'll be there to solve your issues or problems. Okay, goodbye.